السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عزیز طلباء؟ خیریت سے ہیں؟ چلیے، ہم نے پہلا سبق مکمل کر لیا۔ آج میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں دوسرے سبق میں۔ صفحہ نمبر 9 کھولیے، آپ کے ریڈر کا صفحہ نمبر 9 کھولیے۔ سبق کا نام ہے اردو۔ اردو زبان کے بارے میں، اس کی چاشنی کے بارے میں، اس کی جاذبیت کے بارے میں اور اس کا کشادہ دل اور اس کے فراوانی کے بارے میں آج آپ کو بتایا جائے گا۔ ہماری یہ اردو زبان کتنی پیاری زبان ہے۔ اس کے لکھنے والے ڈاکٹر ذاکر حسین ہیں۔ ان کی پیدائش یہیں حیدرآباد میں بیگم بازار میں ہوئی اور یہ صدر جمہوریہ بھی بن چکے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیس کی آن بان ہے اردو، دیس کی آن بان ہے اردو، فخر ہندوستان ہے اردو، سب اسے بولتے سمجھتے ہیں، ایک عوامی زبان ہے اردو، ہر زبان کو گلے لگاتی ہے، مادر مہربان ہے اردو، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، تاج بھارت کی جان ہے اردو۔ ٹھیک ہے، چلیے اب یہ پڑھانے کا مقصد کیا ہے، اس سبق سے آپ کو کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ مرکزی خیال، ڈاکٹر ذاکر حسین نے مضمون اردو میں بڑے دلنشین انداز میں اردو کی تاریخی اور سماجی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ عوامی زبان ہے، یہ عوامی زبان ہے، کوئی کلچر، کوئی سوسائٹی یا کوئی گروپ کے لیے خاص نہیں ہے کہ فلانی جگہ یہ ہونا چاہیے، کسی علاقے کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ ساری ہندوستان میں سب کی جگہ، ہر جگہ بول چال میں ہے، خرید و فروختوں میں ہے، مارکیٹوں میں ہے، میلوں میں ہے، ٹیلوں میں ہے، آپس کی گفتگو میں ہے۔ آدمی اپنی معافی ضمیر، اپنی دل کی بات بہت پیارے انداز میں اس اردو زبان میں آگے والے کو پہنچا دیتا ہے اور آگے والے کی بات سن سکتا ہے۔ لوگ پیار و محبت سے سیکھتے ہیں، اس کو بولتے ہیں، یہ عوامی زبان ہے، اس سے پیار پھیلتا ہے۔ یہ کوئی حکومت کی طرف سے دباؤ میں ڈالی گئی نہیں ہے، کوئی پریشر ڈال کے کہ یہ کسی قوم کی زبان ہے، یہ کسی مذہب کے ساتھ خاص ہے، ایسے لوگ بولنا یہ پرانے علاقے کے ساتھ ہے، ایریا کے ساتھ ہے، ایسا کوئی نہیں ہے، یہ عوامی زبان ہے۔ گنگا جمنی تہذیب کی آئینہ دار ہے، اردو زبان ہی کثرت میں وحدت کا مظہر ہے، کثرت میں وحدت کا مظہر ہے۔ کثرت میں وحدت، بہت زیادہ زبانیں ہیں ہمارے ہندوستان میں، ہمارے دیش میں، اس میں ایک ایسی زبان ہے وحدت کی، اس کی ایک پہچان ہے، سارے قوم والے اور سارے علاقے والے اور ہر جگہ والے اور ہر آدمی چھوٹا بڑا اپنا پرایا، کوئی اس میں امتیازیت نہیں ہے، سب اس زبان کو بہت پیارے انداز میں بولتے ہیں، اپنی مادری زبان ہے۔ ماخذ، یہ کہاں سے لیا گیا مضمون؟ یہ مضمون ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کے مضامین میں سے ایک مضمون ہے۔ چلیے سبق دیکھیے، صفحہ نمبر 10۔ وہ زبان جو پہل میں نے اپنی ماں سے سیکھی تھی، کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب، وہ زبان جو پہل میں نے اپنی ماں سے سیکھی تھی، کیونکہ ہر بچے کا مدرسہ اس کی ماں کا گود ہوتا ہے، جس میں میری ذہنی پرورش ہوئی، ذہن بھی پروان چڑھتے گیا، یہی نہیں کہ اس سے مجھے شخصی اور ذاتی لگاؤ ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ ایک وفادار ہندوستانی شہری کی حیثیت سے مجھے یہ زبان اس زندگی کے پھلنے، پھولنے اور پروان چڑھنے کی بشارت دیتی ہے، جو ہم سب ہندوستانی اپنے آزاد دیش میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس زندگی کی روح کیا ہے؟ اس زندگی کی روح کیا ہے؟ اس کی روح ہے اور ہمیشہ سے رہی ہے کثرت میں وحدت کی تلاش، کثرت میں وحدت کی تلاش، الگ الگ اور طرح طرح کے عناصر سے ایک ملی جلی گنگا جمنی تہذیب کے بنانے کے آرزو، جو رنگ برنگ کے تمدنی پھولوں کو، رنگ برنگ کے تمدنی تہذیب، الگ الگ لوگوں کی تہذیبوں کے پھولوں کو وحدت قومی کے ڈوروں میں
वहदत कौमी के डोर में पिरोकर ऐसा हार बनाना चाहती है कि वो हार गूंद कर इंसानियत के गर्दन में डाला जाए, तो उसकी शोभा बढ़ा दे, उसकी खूबसूरती जी, उसकी सुंदरता और बढ़ा दे। जिसमें कुल अपने जुज़ को रकीब नहीं समझता, जिसमें कुल अपने जुज़ को रकीब नहीं समझता, हरीफ नहीं समझता, अपोजिशन वाला नहीं समझता, उसकी ताकत को अपना बल जानता है। हिंदुस्तानी जिंदगी के तमद्दुन मज़ाहिर में मुझे ये रूह उर्दू जुबान में बड़े सुथरे और निखरे हुए रूप में दिखाई देती है। और उर्दू की तारीख पर मतलब हिस्ट्री, तहकीकाती काम मुझे इस वजह से और भी अहम दिखाई देता है। मैं समझता हूं कि अदना ताअम्मुल, छोटे से गौर फिक्र, ताअम्मुल माने गौर फिक्र, मामूली से गौर फिक्र से ये बात बिल्कुल रोशन हो जाएगी कि उर्दू न किसी फिरके की जबान है, मैंने बताया शुरू में, किसी फिरके की, किसी जो है इलाके की या किसी ग्रुप की नहीं है, न किसी फिरके की जुबान है, न किसी मजहब की जुबान है, न किसी हुकूमत की तरफ से जबरदस्ती चलाई हुई जुबान है, न किसी खास नीयत से मसनूई गढ़ी हुई जुबान है। ये तो लोगों की जुबान है, ये तो लोगों की जुबान है, आपस में मेलजोल का फल है। मेलों, ठेलों, बाजारों, मंडियों की रेल पेल में बोली हुई जुबान है। जो जुबान आसान हो जाती है, जो जुबान प्यारी होती है, जो जुबान अच्छी होती है, उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसी में गुफ्तगू करते हैं, उसी में जो है आपस का गम और खुशी बांटते हैं, उसी में लेन देन व्यापार करते हैं, उसी में अच्छी बुराई चीज़ों की नसीहत लेना या नसीहत करना सारी चीज़ें होती हैं। जिंदगी के व्यापार के कांटों में तुली हुई जुबान है, चीजों के लेन देन के साथ विचारों का नतीजा है। सिर्फ चीजें दे रहे ले रहे नहीं, विचार भी, मेरे विचार, बात करते टाइम है, चलो थोड़ी देर में वो गोडाउन से माल आ रहा, बैठिए, हाँ सब बताइए क्या है, तो फिर विचार जो अपने ख्यालात का भी जो है ये जुबान है। ये फकीरों और संतों की जुबान है, फकीरों, दुर्वेशों, मुंशियों, संतों और सूफियों, बड़े बड़े अल्लाह वालों की भी जुबान है, जो अपने मारिफत में डूबे हुए दिल की बात औरों तक पहुंचाने के लिए बेकल थे, बेचैन थे कि अपने दिल की बात, अल्लाह से मारिफत की बात, अल्लाह से जोड़ने की बात, ताल्लुक से जुड़ाने की बात, इन चीजों को बताने के लिए वो लोग बेचैन थे। और जिनकी मनमोहनी बातें सुनने को आम लोग कान लगाए रहते थे। तो ये सारे संत और फकीर वगैरह, मुंशी, सूफी, सारे लोग कौन सी जुबान इख्तियार करते थे? उर्दू जुबान बोलते थे। इसलिए ये मोहब्बत और प्रेम की जुबान है, रवादारी की जुबान है, मेल मिलाप की जुबान है। इसका दिल भी बड़ा है, इसका दिल भी बड़ा है, उसकी झोली भी बड़ी। ये नए अंदाज से चमकती नहीं, ये जुबान जो है नए अंदाज से चमकती नहीं, नई बात पर बिदकती नहीं, लफ्जों से घिनियाती नहीं, विचारों से छूत छात नहीं करती, विचारों से, ख्यालात से छूत छात नहीं करती, सबको मिला लेके अपने अंदर समो लेके, बड़ा दिल इसका साथ लेके चलती है। कोई ये न समझे कि उर्दू के ये गुण मैं खामखा गा रहा हूं, ये गुण जो है मैं खामखा गा रहा हूं, ये कोई ऐसा न समझे। इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हमें जो समाज बनाना है, जो सोसाइटी क्रिएट करना है, उसमें जोड़ने वाली ताकतों को उभारना है। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जोड़ने वाली ताकतों को उभारना है, एंकरेज करना है, ठीक है, ग्रोथ करना है। तोड़ने वाली ताकतों को दबाना है, खत्म करना है, जोड़ने वाली ताकतों को उभारना है, जोड़ने वाली ताकतों का साथ देना है, जोड़ने वाली कुव्वतों का साथ देना है हमको, तोड़ने वाली ताकतों को दबाना है। जुबान जोड़ने वाली ताकत है, जुबान जोड़ने वाली ताकत है। अगर कोई जुबान बात करता है तो उससे आदमी जुड़ता है, लेकिन हमारा हाल क्या है, अब क्यों ऐसा बनाया गया है
ऐसा सोसाइटी में ऐसा क्यों क्रिएट किया गया है वो तो अल्लाह ही जाने, या सियासी रंग समझ लीजिए कि जुबान से तोड़ा जा रहा है, तो ये जुबान का है फलाना है, तो ये जुबान का है फलाने इलाके का है, तो तेलुगु बोलने वाला है तेलंगाना आंध्रा का है, तो मराठा बोलने वाला है, तो मराठी बोलने वाला है, तो जो है महाराष्ट्र का है, और तो ये जुबान तमिलनाडु का है, तो इस तरीके से अलग अलग टुकड़े कर दे रहे हैं। हालांकि जुबान सबको जोड़ती है। हर जुबान जोड़ती है, पर हर जुबान वाले उसे अपने को दूसरों से अलग कर लेने का आला बना लेते हैं, इस पर लड़ते हैं, कट मरते हैं, एक दूसरे पर तोहमतें बांधते हैं। एक ही देश में एक जुबान वाला इलाका दूसरी जुबान वाले इलाके से ऐसा बर्ताव करता है जैसे कोई पराया देश हो। एक ही देश में एक इलाके वाला दूसरी इलाके वाले से ऐसा बर्ताव करता है जैसे कोई पराया देश हो। कन्नड़ा बोलने वाले के साथ तेलुगु बोलने वाला ऐसा बर्ताव करता है कोई पराया देश से आया हो, जबकि हम सब एक ही देश के हैं। ये सब बड़ी भूल की बातें हैं। और आज जबकि देश को अपनी आजाद जिंदगी की पहली कठिन मंजिल दरपेश है, इत्तेहाद कौमी अज़बज़ जरूरी है, अज़हद जरूरी है। इत्तेहाद कौमी, पूरा एक कौम बनना। कौम मतलब अलग अलग मजहबों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कौम का मतलब हिंदुस्तानी, कौम का मतलब इंडियन, कौम का मतलब भारतीय। हम सब भारतीय हैं, हम सब इंडियन हैं, वी आर इंडियंस। चाहे आपका मजहब कौन सा भी हो, चाहे आपकी जात कौन सी भी हो, चाहे आपकी तहजीब कौन सी भी हो, आपके तमद्दुन कौन से भी हो, आपके विचार कौन से हो, लेकिन जुबान हमारी एक है और हम वी आर इंडियंस। इन झगड़ों में पड़कर हम इन मुश्किलों का सामना कैसे करेंगे? अगर ये कौम की जुबान की जो है झगड़ों में पड़ेंगे तो हम कैसे जो है इन मुश्किलों का आसान करेंगे जो आगे दिखाई दे रही हैं। कितना दर्द है देखिए डॉक्टर जाकिर साहब का, जाकिर हुसैन साहब। उर्दू चूंकि देश के किसी इलाके में महदूद नहीं है, खासतौर पर समझ लीजिए, उर्दू जो है सिर्फ कश्मीर में बोली जाती है, उर्दू सिर्फ लखनऊ में बोली जाती है, उर्दू सिर्फ हैदराबाद में बोली जाती है, उर्दू सिर्फ महाराष्ट्र में बोली जाती है, ऐसा नहीं है, पूरे देश में बोली जाती है। कोई इलाका, कोई खित्ता, कोई जगह ऐसे नहीं है जहां उर्दू ना बोली जाती हो। किसी इलाके के साथ महदूद नहीं है, हर जगह ही इसके बोलने वाले और समझने वाले मौजूद हैं। इसलिए इसको वहदत कौमी के बेदार करने में सबसे आगे होना चाहिए। लेकिन पिछली तारीख ने इसमें भी बहुत से पेच डाल दिए हैं, बहुत से मरोड़े डाल दिए हैं, बहुत से टेढ़ेपन डाल दिए हैं, पेच डाल दिए हैं, मुश्किलें डाल दिए हैं। कोई कहता है कि ये मुसलमानों की जुबान है, कोई कहता है कि उर्दू मुसलमानों की जुबान है, कोई कहता है कि परदेसी जुबान है। मगर सच ये है कि ना सिर्फ मुसलमानों की जुबान है, ये सिर्फ मुसलमानों की जुबान नहीं है, ना परदेसी जुबान है। और अच्छा मान लो कि मुसलमानों ही की जुबान होती तो भी हमारी आजाद जमहूरी जिंदगी में ये कोई ऐब की बात ना होती। अगर मान भी लीजिए कि मुसलमानों की जुबान होती तो भी अपनी आजाद जमहूरी हुकूमत और हमारे आजाद इलाके में एक कोई बड़ी ऐब की बात ना होती। हर आदमी जो हमारे देश में रहता है, हर आदमी जो हमारे देश में रहता है उसे अपना देश जानता है, उसकी अजमत को मानता है। अजमत माने ग्रेटर पना, उसके अजमत को मानता है, उसके मुताबिक चलता है। वो हमारा भाई है, वो हमारा भाई है, साथी है, दोस्त है। उसकी तरक्की हमारी तरक्की है, उसकी भलाई हमारी भलाई है। मगर उर्दू तो सिर्फ मुसलमानों की जुबान है भी नहीं। हकीकत है कि मान लो बोल के बोले, लेकिन देखा गया तो उर्दू जुबान जो है मुसलमानों की जुबान है भी नहीं। हकीकत में कोई फहरिस्त नहीं बनाई। जो नाम इस वक्त याद आ गए वो लेता हूं, यानी चंद बड़े बड़े शुअरा और मुसन्निफिन के नाम लेते हैं जो इसमें से एक भी मुसलमान नहीं है, लेकिन उर्दू के बेहतरीन कवि, बेहतरीन शायर, बेहतरीन मुसन्निफ गुजरे हैं। और पूछता हूं कि त्रिभुवन नाथ हिजर, जोला प्रसाद बर्त, रतन नाथ सरशार, प्रोफेसर रामचंद्र, सुदर्शन कृष्ण चंद्र, महेंद्र सिंह बेदी, ब्रजमोहन दत्तात्रेय, नसीम
चगबस्त सरवर जहां आबादी फिराक गोरखपुरी मुंशी नविल किशोर लाला श्री राम यानी साहिब खम खाने जावेद मुंशी दया नारायण निगम की जुबान को कोई मुसलमानों की जुबान कैसे बताता है? इनकी जुबान को कोई मुसलमानों की जुबान कैसे बताता है? ये तो जी मुसलमान नहीं है। और उसकी जुबान पर मजहबी तंग दिली और तंग नजरी का इल्जाम लगाना कौन सी दियानत है? मजहबी जुबान बोल के या तंग दिली के नजरिया तंग नजरिए के जो है इल्जाम लगाना कौन सी दियानतदारी है और कौन सी फिरासत है, कौन सी अक्लमंदी है? फिर उर्दू न बदेसियों की जुबान है न बदेसी जुबान है। ये कोई अदर कंट्री की जुबान नहीं है उर्दू, और ना ही विदेशी है। जरा भी देखिए तो कदम कदम पर इसकी शहादत मिलती जाएगी लिसानी नुक्ते नजर से उसके अफ़आल और हुरूफ और आम जरूरत की बातें सब हिंदवी हैं, सब हिंदी हैं। इसकी आवाजों पर कान धरिए तो ईरान और अरब से कोई रिश्ता नहीं, ईरान और अरब से इस जुबान को कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं मिलता। आवाजों की बहुत बड़ी तादाद खालिस हिंदुस्तानी है। अरबी लफ्जों में जो अजनबी आवाजें आई हैं उन्हें भी बोलचाल में अपना लिया है, उन्हें भी इतना यूज किया है, इतना वो जो है अपने उसमें डाल दिया है लैंग्वेज में कि अपने ही इलाके की जुबान में आवाजों में ढाल दिया है। लिखाई में भी उसके परदेसी होने पर बहुत जोर दिया जाता है। हालांकि दर्जनों हिंदुस्तानी आवाजों के जाहिर करने का इसमें सामान है। इसमें अड़े, डाल, टे, डे, ढ, थ, भ, झ, छ और फ। क्या ये परदेसी जुबानों की आवाज हैं? क्या ये परदेसी जुबानों की आवाजें हैं? तो इस पर आप गौर कीजिए। और एक हिस्सा है सबक का, इसकी वजाहत इंशाअल्लाह हम अगले वीडियो में करेंगे। इसमें बहुत अच्छे तरीके से आप गौर कीजिए। तो इसमें जो है उर्दू जबान की प्यारी और उर्दू जबान की जो है चाशनी, उर्दू जबान की चाहत और उसकी जो है कुशादा दिली, बड़े दिल को बयान किया गया है। ये वो आम और प्यारी जुबान है जो हिंदुस्तान के हर इलाके में बोली जाती है। इसलिए उर्दू सीखिए, उर्दू बोलने की कोशिश कीजिए, अच्छी तरीके से उर्दू सीखिए। लिखना और पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपनी माफी ज़मीर आसानी के साथ दूसरों को पहुंचा सकते हैं, दूसरों का दुख दर्द हम समझ सकते हैं, दूसरों की ज़रूरतें समझ सकते हैं, अपनी बात उनको सुना सकते हैं, उनकी बात हम सुन सकते हैं। करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सा मेहनत कीजिए तलबा, इंशाल्लाह। चलिए, अल्लाह हाफिज़।